Assalamu alaikum dear students, welcome to English Keys channel. I am Muhammad Naeem and today we are going to solve question answers and grammar of chapter number 2 English grade 11 new course Federal Board and KP Board. तो सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स को हम देखते हैं। हमारे पास 9 क्वेश्चंस हैं जो आज हमने डिस्कस करने हैं और उसके बाद हम ग्रामर को डिस्कस करेंगे। और इसमें से जो फर्स्ट 7 क्वेश्चंस हैं ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो है ये एक्टिविटी बेस्ड हैं, यानी आपने चैप्टर की का जो टेक्स्ट है उसको सामने देख के आपने ये क्वेश्चन करने होंगे। तो इस चैप्टर की अगर पहली वीडियो जिसके अंदर हमने रीडिंग की थी वो अगर वीडियो आपने नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके आप रीडिंग को देख सकते हैं। उसके अंदर रीडिंग का कंप्लीट सोल्यूशन मौजूद है। तो चलें क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करते हैं। So the first question is that why did the young seagull have to join the company of his family? The answer is that the young seagull had to join the company of his family to learn the art of swimming, diving and catching a fish. It is necessary for every younger one to learn the basic art of survival, like how to eat, how to protect itself from the dangers of surrounding world. For that, one needs to take a step. But the young seagull was afraid of flight and was hungry. Therefore, he wanted to join his family. Question number 2 is that why don't his parents, his brothers and sister give him food? The answer is that his family did not want to spoon feed him. It would have turned him into a lazy and dependent being. His elders wanted him to come out of ledge, fly towards the sea and catch a fish by himself so that his fear would come down and he would become independent. That is why his brothers, sisters and parents did not give him food. वो उसको चाहते थे कि वो खुद आए और मतलब वो खुद सीखे कि खाना जो है वो कैसे आप कैसे अपनी खुराक हासिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ दैट व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द फैमिली टुवर्ड्स द यंग सीगल एंड वाज इट एग्रीएबल टू यू और नॉट, यानी उसके वालिदैन का जो रवैया था और उसके बहन भाइयों का, उससे आप इत्तेफाक करते हैं या नहीं। So the answer is that the attitude of parents was very ruthless and practical towards young seagull. They wanted him to come out of the nest and experience the art of flying and catching a fish. They wanted that young seagull should not be afraid of anything. Therefore, they maintained a very practical behavior which resulted in good, and the young seagull made his first flight. Okay. Question number 4 is that describe in your own words the feelings, actions and thoughts of the young seagull after his fall. Answer is that the young seagull was feeling very excited, overjoyed and happy. He had made his first flight and the fear of falling was gone. He was flying confidently without falling and he was enjoying the flight. Moreover, his family was praising him, circled around him, encouraging and loving him. Experiencing all of this was very exciting for the young seagull. Okay. Question number 5 is that what could be the author's purpose behind writing the story His First Flight? So the author or the writer wrote this story to advocate and describe the importance of courage. He wanted to narrate that things are always beautiful if you can overcome your fears and reservations. By natural stories, the writer creates a very dramatic and interesting situation and gives us a lesson that we should overcome our fears if we want to enjoy the life in its true sense. यानी अगर हम ज़िंदगी को उसके हकीकी मायनों में अगर हम उसको एंजॉय करना चाहते हैं तो हमें अपने खौफ जो हैं उससे निकलना पड़ेगा। Question number 6 is that compare and contrast the attitude of the family members before and after the flight of the young seagull in his first flight. The answer is that before the flight of young seagull his family was behaving ruthlessly, यानी कि बिल्कुल वो जो है ना वो कोई उनके अंदर रहम नहीं था और बिल्कुल जज्बात से जो है ना वो हट के उससे के साथ वो बिहेव कर रहे थे. All of them were upbraiding him and encouraging him to come out of the ledge and make his flight. They were not sharing their food with him. Even his mother was acting like a stranger. But after he made his first flight, all of them started loving and praising him. यानी पहले वो उसको इनकरेज कर रहे थे, उसको ताने दे रहे थे, उसको शर्म दिला रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने अपनी फ़्लाइट पहली उसने उड़ान भरी तो उसके बाद से सारे उससे प्यार करने लगे. Question number 7 is that identify the sentence in the first paragraph of his first flight which shows cause and effect. तो आपने पैराग्राफ नंबर 1 पढ़ना है इस लेसन का और उसमें से आपने देखना है कि कौन सा फ़िक्रा ऐसा है जिसके अंदर कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप को शो किया गया है. तो बच्चे कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप वो होता है कि जिसके अंदर किसी चीज़ का जो काज है, कोई भी चीज़ जब किसी दूसरी चीज़ के लिए वजह बन रही होती है, यानी अगर आप कॉज ये है कि आप सो गए थे तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि आप ट्रेन मिस कर देंगे. तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको कॉज एंड इफेक्ट सेंटेंसेस कहा जाता है.
तो इसके अंदर जो सेंटेंस है फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर, आप बुक खोल के उसमें से देख सकते हैं। ही फेल्ट सर्टन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। तो कॉज क्या थी? ये जो रेड फॉन्ट में दिया गया ये कॉज है, और जो ब्लू में है ये इफेक्ट है। तो कॉज क्या थी कि उसको फियर था, ठीक है। ही फेल्ट सर्टन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, फियर। और उसका इफेक्ट क्या हुआ कि वो वापस भाग के अपने जो उसका होल था जहाँ पे वो रात को रहा था वहाँ पे वो वापस चला गया। अच्छा, तो ये हो गए क्वेश्चन आंसर्स। उसके बाद हम चलते हैं ग्रामर की जानिब। तो ग्रामर में सबसे पहले हमारे पास वोकेबलरी है। यूज़ डिक्शनरी टू आइडेंटिफाई द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विद प्रोनाउंसिएशन की एंड देन यूज़ इन सेंटेंसेस। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन हम देखते हैं। दिस वर्ड विल बी प्रोनाउंस्ड एज नो, जी इज साइलेंट, एंड दिस इज मॉन्स्ट्रस, दिस इज derisively, this is plateau, and this is devour. Okay, so you can make the sentences by your own, very easy sentences. Question activity number B is that write the words related to cooking in front of their meanings. So this is cooking vocabulary or kitchen vocabulary. Okay, so number 1 is mark with knife without cutting. So इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम स्कोर करना कहते हैं। ओके, नंबर 2 इज़ दैट टेक स्किन ऑफ फ्रूट वेजिटेबल, यानी कि छीलना सब्जी को या फल को, तो उसको इसको इंग्लिश में पील करना कहते हैं, PEEL, पील। ठीक है, ऊपर ये वर्ड्स दिए हुए, इसी में से आपने फाइंड आउट करना है। और कट इनटू क्यूब्स, छोटे छोटे क्यूब्स में काटना, उसको चॉपिंग कहते हैं। अच्छा, शेक पाउडर थ्रू अ फाइन मैश और नेट, किसी छलनी के साथ या किसी जो है ना वो जो मैशर होता है उसके साथ पाउडर को जो है वो मिक्स करना, उसको साइव करना कहते हैं। ये वाला वर्ड इसमें आएगा। जैसे हम यानी कि फेंटना, ठीक है, जैसे हम अंडे को फेंटते हैं या पकौड़े बनाने के लिए बेसन को फेंटते हैं। फिफ्थ वन इज़ मसाज विद हैंड्स, हाथों के साथ मसाज करना, यानी कि हाथों के साथ उसको गूंदना, तो उसको नीड कहते हैं। जैसे हम आटा नीडते हैं हम लोग, या बेसन को नीड कर रहे होते हैं, या हम शामी कबाब वगैरह बनाने के लिए हम दाल को नीड करते हैं। उसके बाद है कुक इन हॉट वाटर, गर्म पानी के अंदर पकाना, तो उसको बॉयल करना कहते हैं। अच्छा, टर्न हीट डाउन टू हीट स्लोली, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल जो है ना वो जो उसकी हीट होती है वो कम कर देना, तो उसको बेकिंग कहते हैं। ठीक है, यूज़ इम्प्लीमेंट टू कट फूड इनटू श्रेड्स, यानी जो फूड है उसको छोटे छोटे उसके पीसेस कर देना, तो उसको ग्रेटिंग कहते हैं। ठीक है। अच्छा, नंबर 9 इज़ दैट यूज़, अच्छा, कुक यूजिंग हॉट ऑयल इन अ पैन, ठीक है, किसी तवे पे या किसी थाली के अंदर जो है वो ऑयल, मतलब पिघलता हुआ ऑयल डाल के जब आप कुकिंग करते हैं तो उसको सिमरिंग करना कहते हैं, SIMMER, सिमर। ओके, यानी कि खोलते हुए तेल के अंदर पकाना। कट वेरी रफली, बहुत रफ तरीके से किसी चीज़ को कट करना, उसको डाइस कहते हैं। डाइस बेसिकली ताश को कहते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा ताश के पत्ते को वो ऐसे बड़ी तेज़ी के साथ उसको मतलब फेंटते हैं। तो जब आप ऐसे किसी चीज़ को काट रहे होते हैं जैसे ताश के पत्तों को काटा जाता है तो उसको डाइस कहते हैं। अच्छा, स्टेयर इंग्रेडिएंट्स टुगेदर, चीज़ों को आपस में मिक्स करना, तो उसको मिक्स कहते हैं, हिलाना चीज़ों को। अच्छा, कट इनटू थिन स्लाइसेस लाइक पेपर, पतली पतली उसके जो है ना वो वर्क बनाना या पतली पतली उसकी काशें बनाना, तो उसको स्लाइस कहते हैं। कुक इन ओवन विदाउट ऑयल, बगैर ऑयल के जब आप ओवन के अंदर कुक करते हैं तो उसको रोस्ट करना कहते हैं। और जब आप ओवन में ऑयल के साथ आप उसको कुक करते हैं तो उसको फ्राई करना कहते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी इज कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि कलेक्टिव नाउन इज एक्चुअली अ सिंगल वर्ड एंड इट रिप्रेजेंट्स मोर देन वन पीपल। ओके, सो हेयर आर 8 लाइक फ्रेजेस, और इनके सामने जो कलेक्टिव नाउन है यानी कि जो इनको डिफाइन करता है, जैसे अगर हम कहें कि टीम, तो टीम एक कलेक्टिव नाउन है और उस किसको रिप्रेजेंट करता है, लाइक 11 प्लेयर्स। ओके, सो 11 प्लेयर्स की एक टीम होती है। तो इसी तरीके से आपने ये वर्ड्स दिए हुए हैं। मैनी इंसेक्ट्स किसको कहते हैं? डेक को कहते हैं, स्वीट को कहते हैं, सेट को, शावल को, बंडल को, कांग्रीगेशन को, फ्लीट को या स्वाम को। तो इसमें से आपने फाइंड आउट करना है। सो मैनी इंसेक्ट्स, स्वाम्स कहते हैं हम उनको, यानी कि जो कीड़े मकोड़ों का जो झुंड होता है। मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों का जो ग्रो होता है उसको कांग्रीगेशन कहते हैं। मैनी फिश, बहुत ज़्यादा जो मछलियाँ होती हैं उनको हम शॉल कहते हैं। मैनी शिप्स, बहुत ज़्यादा जहाज़ों को हम फ्लीट कहते हैं। मैनी पेपर्स, बहुत ज़्यादा पेपर्स को हम बंडल कहते हैं। मैनी रूम्स, बहुत ज़्यादा कमरों को हम स्वीट कहते हैं। मैनी कार्ड्स, डेक कहते हैं। मैनी नाइव्स, इसको हम सेट कहते हैं। चूज़ द करेक्ट वर्ब एंड माइंड द नाउन, कि आपका नाउन जो है उसको देखते हुए आपने सिंगुलर या प्लूरल नाउन जो है उसके हिसाब से आपने वर्ब को फाइंड आउट करना है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हेयर इज़ द न्यूज़।
अच्छा, अब न्यूज़ जो है ना, अक्सर हम समझते हैं कि शायद न्यूज़ के आखिर में जो एस है ये प्लूरैलिटी का है, लेकिन ये प्लूरैलिटी का एस नहीं है। एक्चुअली इट इज़ एब्रीविएशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये इसका एब्रीविएशन है। तो इसको आपने कभी भी प्लूरल नहीं समझना, और ये हमेशा सिंगुलर होता है। अच्छा, वेयर आर माई शूज़, शूज़ है तो आर आएगा। फर्दर इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल, इन्फॉर्मेशन होता तो आर होता, फर्दर इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल। द स्टेयर्स आर ओवर देयर, स्टेयर्स है। द फर्नीचर, फर्नीचर है, फर्नीचर्स नहीं है तो इज़ आएगा। पाकिस्तान इज़। यूर सन ग्लासेज, सन ग्लास नहीं है, सन ग्लासेज है तो आर आएगा। होमवर्क इज़। द सीजर्स ऑन द टेबल आर माइन, सीजर्स है, सीजर नहीं है। फिजिक्स इज़ नॉट ईजी। उसके बाद यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेज, वंस एज अ सिंगुलर नाउन एंड देन एज अ प्लूरल नाउन। तो दीज आर वेरी इजी वर्ड्स, इनके आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। ऑक्स, रूफ, पोटैटो का प्लूरल पोटैटोज होता है, पार्टी का पार्टीज, डियर का डियर, चीफ का चीफ्स, फ़ोटो का फ़ोटोज, सीरीज़ सिंगुलर भी यही है, प्लूरल भी यही है। वाइफ वाइव्स, ब्रदर इन लॉ ब्रदर्स इन लॉ, लाइफ लाइव्स, फैमिली फैमिलीज, बॉय बॉयज़, हाउस हाउसेज, सिटी सिटीज़, मैन मैन, चाइल्ड चिल्ड्रन, सैंडविच सैंडविचेज, नर्स नर्सेज, शेल्फ शेल्फ्स। उसके बाद है जी फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब इन पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स को बोलते हैं। एंड थिंक अबाउट वेदर द नाउन इज सिंगुलर और प्लूरल। द पेयर ऑफ सन ग्लासेस, अब सन ग्लासेस अकेला होगा तो आर होगा, द पेयर जब आ जाएगा तो फिर वो क्या होगा, वो इज होगा। द पेयर ऑफ सन ग्लासेस इज रियली एक्सपेंसिव, आई एम नॉट पेइंग दैट मच। नंबर टू इज दीज सीजर्स आर ब्लंट, दीज है ना तो आर आएगा। दैट जैकेट यू आर वेयरिंग इज रियली नाइस बट दोज ग्रीन, दोज प्लूरल है तो जीन्स के साथ भी आर आएगा। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, अ लॉट ऑफ द न्यूज़ वी हियर ऑन द टीवी इज बैड, पहले मैंने आपको बताया कि न्यूज़ हमेशा सिंगुलर होगा। द पुलिस डैश अ ब्रेक इन एट द नेशनल बैंक लास्ट नाइट, लास्ट नाइट है तो इन्वेस्टिगेटेड आएगा, पास्ट का टेंस होगा। पीपल डैश, people are always likely to tell lies to protect themselves, think carefully before you spend that amount of money, £1,000 is a lot। यानी जब हम कहते हैं ना कि लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट है, हम ये नहीं कहते लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट हैं, सिंगुलर हम यूज़ करते हैं। यू शुड ट्राई वॉकिंग सो फार जस्ट टू फाइंड एन ओपन मार्केट, 3 miles विल टायर यू, 3 mile विल टायर यू, या यहाँ पे आप ये भी लगा सकते हैं 3 mile टायर्स यू। ओके, टायर्स यू आउट सो क्विकली, आई एम टेलिंग यू। Okay, they have exaggerated a little with the new swimming pool. Did you see the temperature of the water? 41 degrees is too high। जब हम कहते हैं ना 50 डिग्री आज टेम्परेचर है नहीं कहते, सिंगुलर यूज़ करते हैं। उसके बाद ट्रांजिशनल डिवाइसेस है। ट्रांजिशनल डिवाइसेस क्या होती हैं? दीज आर द वर्ड्स यूज टू लिंक आइडियाज विद इन सेंटेंस एंड सेंटेंसेज विद इन द पैराग्राफ। If you use them correctly, transition words make writing easier to understand and more mature. Try to identify transition words when you are reading and when you have an opportunity use these words as well। तो ये एक एक्टिविटी है, इसके अंदर आपने क्या करना है, ट्रांजिशन वर्ड्स को आपने यूज़ करना है। यू कैन यूज़ थिंग्स यू ऑलरेडी हैव अराउंड द हाउस फॉर डोल फर्नीचर, फॉर एग्जाम्पल आ स्पूल ऑफ थ्रेड कैन बी यूज एज अ स्टोल। तो इस तरह के ट्रांजिशन डिवाइसेज आपने यूज़ करने हैं। जैसे आई लव पिज़्ज़ा, देयर फॉर मोस्ट डेज आई ईट इट फॉर ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। अच्छा, द डे सीम्ड एंडलेस विद द while we were working on our project, but at the end the time came for us to set it aside for the day and go home. Khan is very educated. He matriculated from high school and then earned a bachelor's degree from the local college. A few years later he earned a master's degree. Presently he is about to get his PhD in physics. या right now आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। Gulmin and I look forward to being able to see each other again next summer. Meanwhile, यानी कि तब तक, ठीक है, जब तक हम मिलते नहीं है तब तक we will write letters to each other. I would really like to see you again as soon as possible. तो इस तरह के ट्रांजिशन डिवाइसेस आपने यूज़ करने हैं। I wanted to go to the movies but the tickets were already sold. Okay, we need to go to the store, therefore लिहाजा we will stop at Rehan's house and pick up the hat I left up there. ठीक है, dogs are not allowed in the mall. Even then the lady that works in the bookstore there brings her dog to work with her every day. I studied very hard for the English test but I barely passed it. On the other hand, my studying efforts were unrewarded in the math class। यानी कि दो सब्जेक्ट जब हम कह रहे थे कि उसमें तो मेरे साथ ये हुआ, लेकिन दूसरी तरफ तो इस तरह के जो ट्रांजिशन डिवाइसेस होते हैं वो भी आप यूज़ करते हैं। उसके बाद है कि क्रिएट एन ओरिजिनल सेंटेंस और पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग द ट्रांजिशन इंडिकेटेड। ये ट्रांजिशन डिवाइसेस दी हुई हैं और इसके ये मैंने सेंटेंसेस कुछ बनाए हैं, इनको आप देख सकते हैं। जैसे मीन वाइल का आई एम स्लीपिंग, मीन वाइल यू कैन वॉच टी वी, फॉर एग्जाम्पल का बाय सम गुड क्लास, फॉर एग्जाम्पल कॉटन सूट्स, कॉन्सिक्वेंटली ही स्लेप्ट, कॉन्सिक्वेंटली ही मिस्ड द बस, विदाउट अ डाउट ही इज़ ऑनेस्ट, विदाउट अ डाउट देयर फोर आई हैव टू गो टू मार्केट, देयर फोर आई वॉन्ट जॉइन द पार्टी।
अच्छा, उसके बाद जी टाइम ऑर्डर या प्रोसेस ट्रांजिशन वर्ड्स हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, लेटर, नेक्स्ट, एज सून एज पॉसिबल, ड्यूरिंग, व्हेन, आफ्टर। तो ये वो वर्ड्स हैं जो आप टाइम ऑर्डर के लिए यूज़ करते हैं, यानी जो रेसिपीज़ होती हैं या कोई इंस्ट्रक्शंस होती हैं या जो आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं कि पहले ये करें फिर बाद में ये करें, जब आप ये कर लें तो फिर ये करें, दरमियान में ये करें। तो इस तरह के जितने भी वर्ड्स आप यूज़ करते हैं वो सारे के सारे टाइम ऑर्डर के या प्रोसेस के ट्रांजिशन डिवाइसेस का कहे जाते हैं। तो ये एक एक्टिविटी है, इसमें यह है कि आपने जो है ना वो कागज़ से आपने जहाज़ बनाना है, जो आप अक्सर क्लासेस के अंदर भी बना के उड़ाते रहते हैं। तो उसके साथ आपने ट्रांजिशन डिवाइसेस कैसे यूज़ करने हैं, जैसे फर्स्ट गेट अ शीट ऑफ पेपर, देन फोल्ड इट इन हाफ लेंथ वाइज, देन आफ्टर दैट फोल्ड द टॉप कॉर्नर्स इनटू द सेंटर, देन फोल्ड द एंगल्ड एजेस इनटू द सेंटर, एंड आफ्टर दैट फोल्ड अलोंग द सेंटर लाइन डैश एंड डैश। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये करना है। सो एंड फाइनली फोल्ड डाउन द विंग्स एंड योर प्लेन इज़ रेडी, so fly your plane. So this was the end of second chapter. In next class inshallah we will start a very beautiful poem, और इसी तरीके से हम पूरी बुक जो है वो उसको सॉल्व करेंगे, और ये सारी बुक का सोल्यूशन आपको इस चैनल के ऊपर मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा दें ताकि अगला लेक्चर जैसे ही अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।